السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رجب کا مہینہ، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں دعا فرمائی اور اس مہینے کا استقبال کیا رمضان کی وجہ سے۔ رجب کے مہینے میں فضائل، فوائد، برکات، ثمرات بہت زیادہ ہے، اور رجب کے مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گمان سے بالاتر ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بنیادی طور پہ ایک سربستہ راز ہے، خفیہ راز ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کچھ چیزیں رازوں میں جان بوجھ کے رکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والے تلاش کریں، پانے والے پالیں، اور اہل لوگ اس پہ محنت کریں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر لیں، اہل لوگ اس پہ محنت کریں۔ جو سچا متلاشی ہے وہی رجب کے مہینے کو تلاش کرے گا، اور رجب کے مہینے میں موتی کیا ہیں، جواہر کیا ہیں، لال کیا ہیں، وہی اس کو تلاش کر کے پھر اس کو پا بھی لے گا۔ اور جس کی تلاش جس کو نہیں ہے کیا پائے گا، وہ کیا حاصل کرے گا۔ آج میں آپ کو رجب کے مہینے کی کچھ برکات اور جو ہمارا رجب کا تعویذ ہے اس کی مزید برکتیں، اس کے اندر ایک 4 خیریں ہیں، 4 برکتیں ہیں، 4 عطائیں ہیں، اور یہ 11 پہ محیط ہیں۔ 4 اوتاد ہیں جس کا میں نے چند جمعراتوں پہلے تذکرہ کیا۔ سفر پہ چلا گیا، کل شام رات میں لوٹا ہوں۔ وہ سلسلہ کیا ہے، اس تعویذ کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کی برکات، اس کے کمالات کیا ہیں، اور کیا اس تعویذ کے کوئی حوالے بھی ہیں ثبوت اور سند کے ساتھ؟ ہاں، موجود ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز آج سے صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں نے آزمائی ہے تو اس سے فائدہ پانا خیر کا ذریعہ ہے، اس سے استفادہ کرنا برکت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے نیک بندوں نے آج سے صدیوں پہلے جو عمل کیا، جو عمل آزمایا، اور جس عمل کی طاقت اور تاثیر پائی، وہ عمل 2 چیزوں میں چھپا ہوا ہے، یا سینوں میں چھپا ہوا ہے، انسانوں کے سینوں میں، یا کتابوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ ظاہر کرنے والے ظاہر کرتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ۔ جس کے پاس کوئی موتی، لال، جواہر یا کسی خزانے کی چابی ہوتی ہے تو وہ چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔ بہت کم ہوں گے جو خزانے کی چابی دیں گے، بہت کم ہوں گے جو خزانے کو کہیں گے ہم لوٹ رہے ہیں، چلو اور بھی کوئی لوٹ لے، اور وہی کوئی خیر پالے، استفادہ کر لے۔ میں نہیں کہتا کوئی نہیں ہے، لیکن میری زندگی کی تاریخ میں ایسے کم لوگ ملے۔ میں نے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا، بہت کم لوگ ملے۔ تو جب مجھے بہت کم لوگ ملے تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گا، انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گا جو خزانے کی چابی اپنی جیب میں رکھتے ہیں،
میں نہیں شامل ہوں گا، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیسے کر سکتا ہوں؟ کوشش ہے، ایک محنت ہے۔ رجب کے مہینے کی برکات، رجب کو کون سی رات کہتے ہیں؟ شب معراج۔ ایسے میرے حضور معراج پہ تشریف لے گئے، معراج کے عرشوں کے آسمانوں کے حالات بتائے، مشاہدات بتائے، واقعات بتائے، عذاب اور ثواب، دوزخ اور جنت، ان کی کیفیات میرے حضور نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ معراج کا سفر روحانی نہیں، جسمانی ہے۔ میرے حضور اپنی اس جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہاں، بعض کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا، نہیں، میرے حضور اپنے اسی جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور رجب کا یہ مہینہ، رجب کا یہ سفر بہت سی امت اور انسانیت کے لیے برکتیں اور خیریں لایا، بہت سی نعمتیں اور سعادتیں لایا، بہت سی عطائیں اور مغفرتیں لایا۔ رجب کا یہ مہینہ، رجب کا یہ سعادت، رجب کی یہ برکت، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ خوش قسمت ہوگا جو رجب کے اس مہینے میں، رجب کے اس مہینے میں خوش قسمت ہوگا جو برکتیں اور سعادتیں پائے گا۔ ایک واقعہ سنیں، سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ صبح لوگوں کو حضور نے خبر دی، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی سینکڑوں میل کا سفر؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ فرمایا ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر فرمایا تو یقیناً سچ ہے، بغیر دلیل کے۔ لوگوں نے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے، صبح ہونے سے پہلے واپس تشریف لے آئے؟ فرمایا میں تو ان کی آسمانی خبروں کی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، یقیناً وہ اس بات سے بھی زیادہ حیران کن ہے، تم صرف مجھے ایک رات کی تصدیق کراتے ہو، میں تو ان کے نہ صبح کی اور شام کی اور پل کی اور رات کی اور لمحے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اس تصدیق کے بعد، میرے حضور کی اس تصدیق کے بعد، ان کو جو لقب ملا وہ صدیق کا ملا۔ صدیق کے معنی ہے سچا۔ سچوں کی تصدیق کرنے والے کو ساری کائنات آج بھی صدیق کہتی ہے کہ اس نے سچوں کی تصدیق کی۔ اور اس واقعے سے ایک بات بہت غور سے سمجھیے گا، یؤمنون بالغیب، غیب کی خبروں کا اقرار، یہ غیب کا ایمان ہے۔ غیب کا اقرار، مشاہدے کا انکار۔ کسی نے پوچھا، ٹرین چل پڑی ہو، ایک اللہ کے بندے بیٹھے ہوں اس میں، ریل گاڑی میں، ریل کار میں، اور چلتی چلتی ٹرین میں ہم ان سے پوچھیں کہ یا شیخ یا حضرت، جاتے جاتے کوئی خیر کی ایسی بات بتا جائے، بھائی ان دیوار والوں کو اپنے اوپر ترس کھائیں، وہ دیکھو بندہ ابھی تک بھی سویا ہوا ہے، ان دیوار والوں سے کہیں ترس کھائیں اپنے اوپر، خیر کی گھڑیاں ہیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، کیا جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ مجھے آپ سے آپ کے بارے میں ہمدردی خیر خواہی ہے، اس لیے منت کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نہ سویا کرے، ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ ٹرین چل پڑی کہ حضرت کوئی خیر کی بات ایسی بتا دیں جس میں سارا دین ہو، جس میں ساری روحانیت ہو۔
और दूसरे लफ्जों में कोई रूहानियत की चाबी देते जाए, बस। तो चाबी हो तो खजाना सारा आपके पास है। तो शेख ने फरमाया अगर रूहानियत की चाबी चाहते हो, बस एक चाबी ये ले लो, बस। वो क्या? मुशाहिदे का इनकार और गैब का इकरार, ये रूहानियत की चाबी है। आज के बाद मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछें, कोई रूहानियत की चाबी दे दे, रूहानियत की चाबी दे दे, तो आप फौरन कहेंगे गैब का इकरार, मुशाहिदे का इनकार। मसला मेरा अल्लाह कहता है कि मैं ज़कात और सदके के माल से माल बढ़ाऊंगा। मेरा अल्लाह ये कहता है बज़ाहिर माल कम हो रहा है। मुशाहिदे का इनकार करना पड़ेगा, अल्लाह और उसके हबीब के वादों का इकरार करना पड़ेगा। अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा। मैं माल अल्लाह की राह में दूंगा तो मेरा माल बढ़ेगा। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे हबीब ने फरमाया नमाज में शिफा है। मुझे फुर्सत नहीं, मैं कहता हूं शिफा है। किस में शिफा? शिफा कहते हैं, शिफा का माने असल में चश्मा है, जिससे प्यास बुझ जाए। शिफा के अरबी में कई माने हैं। एक माना ऐसा चश्मा है जिसमें प्यासे की प्यास बुझ जाए, बीमार की प्यास बुझ जाए, कर्जदार की प्यास बुझ जाए, गरजमंद की प्यास बुझ जाए, दुखियारे की प्यास बुझ जाए, गम के मारे की प्यास बुझ जाए, तकलीफ के हारे की प्यास बुझ जाए। नमाज में शिफा है। मुशाहिदे का इकरार नहीं, इनकार कि नमाज क्या होगा, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, पर नमाज से मुझे बरकतें और खैरें मिल के रहेंगे, बरकतें और खैरें मिल के रहेंगे। मैं अभी दुबई में था, तो मैं दुबई के बादशाहों को कहता था अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने आखिरी वक्त में कलमा नसीब होने का हमें नुस्खा दे दिया। हाँ, मैं दुबई के बादशाह के लिए दुआ करता था। आप कहेंगे ये कैसी दुआ है? क्यों? जो नजरों की हिफाजत की कोशिश करेगा, अल्लाह उसे आखिरी वक्त में कलमा देगा। मैं दुबई के बादशाह के लिए दुआ करता था, तुमने हमें नजरों की हिफाजत की मशक कराई है, इस पे मेहनत की कोशिश कराई है, और इंशाअल्लाह हम टूटे फूटे कमजोर मुसलमान हैं, हम दावा नहीं कर सकते, पर नजरों की हिफाजत मोबाइल के जरिए हो या जाहिर के जरिए हो, वो तस्वीर हो या हकीकत हो, जो नजरों की हिफाजत करेगा, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह पाक फरमाते हैं, उसके हबीब फरमाते हैं, मफहूम है कि उसको आखिरी वक्त में कलमा नसीब होगा। मैं तो दुबई के बादशाह के लिए दुआ करता रहा। मुशाहिदे का इनकार और गैब का, यह रूहानियत की चाबी है, यह रूहानियत की चाबी है। मेरा अल्लाह कहता है रोजे से मैं सेहत दूंगा, रोजे से मैं सेहत दूंगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरी तरफ उठने वाले कदम, मेरे हबीब का फरमान मफहूम है, उन कदमों के एक एक कदम पे 700 नेकियों का सवाब दूंगा। और जो अल्लाह का नाम सीखने जाता है, तालिब इल्म है, जैसे आप अल्लाह का नाम सीखने तस्बीह खाने में तशरीफ लाए, या पूरी दुनिया में जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, ज़ाहिर चल के आए, कहीं अपनी मेहनत कोशिश की, पर मैं इनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। यह मुशाहिदे का इनकार है। हबीब का फरमान सच्चा है कि फरिश्ते पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे एक साहब हमारे कहने लगे कि हम फिलिपाइन मैनीला में गए, तो एक साहब को देखा कि वो जुराबों के साथ चल रहे, जुराबों के साथ चल रहे। तो मैंने कहा, मकामी बंदे से पूछा कि इससे बात करें, ये जुराबों के साथ क्यों चल रहा? तो उसने कहा मैंने आपसे सुना है, जो अल्लाह का नाम सीखने आता है, तालिब इल्म है, उसके पांवों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। मुझे हया आई, फरिश्ते मेरे पांव के नीचे पर बिछाएंगे, मैं जूते के साथ चलूं।
ये है मुशाहिदे का इकरार, नहीं इनकार, और गैब का बस फरमा दिया। गैब का सच्चा वाकया मौजूद है, मेरे हबीब ने फरमा दिया। मुशाहिदे का इनकार किया। आंखें तो देख रही हैं, मैं जमीन पे अपनी जुराबों के साथ चल रहा हूं, लेकिन गैब बता रहा है कि मेरे पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं एजाज इज्जत हासिल करने के लिए। कौन बंदा है जिसके साथ 70 ख्वाहिशें, 70 हाजतें, 70 जरूरतें लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी ये खैर की तरफ इसके कदम उठ रहे हैं, तो फरिश्ते कहते हैं हम भी इनके कदमों की बरकत ले लें। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने सादतमंद हैं कि फरिश्ते आपके पांव के नीचे पर बिछा रहे, पर बिछा। रजब के महीने में खैरें और बरकत तलाश करें, रजब के महीने की सआदतें तलाश करें, और तलाश करने वाले को मिलता है, और तलाश करने वाला पा लेता है, और तलाश करने वाला हासिल कर लेता है। रजब के महीने में तलाश करने वाला हासिल करता है, और तलाश करने वाला पा लेता है। पर बात यह है कि यह वाकया रजब के महीने में हुआ था, जिसकी वजह से लफ्ज सिद्दीक मिला। आज भी सिद्दीक कह दे तो फौरन नजर अबू बकर पे जाएगी, कोई वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उनको लफ्ज सिद्दीक क्यों मिला? उन्होंने बगैर ये नहीं कहा अच्छा मैं अपने हबीब से पूछ लूं, वजाहत देख लूं, कोई तस्दीक कर लूं, अच्छा मुझे सोचने का मौका दें, मैं जरा थोड़ा सा, कुछ भी नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया मैं रात को हजरत उम्मे हानी उनके घर सोया हुआ था, उम्मे हानी की घर में सोया हुआ था। फरिश्तों ने जगाया, घर की छत खुली, फरिश्ते आए, मुझे हरम में लाए, अभी इस हालत में कि मेरे ऊपर ऊंग का असर था। और फिर फरमाया कि अचानक मेरे पास मेरी हंसली की हड्डी से पेट तक का हिस्सा चाक किया, चाक करने का बाद दिल मुबारक निकाला, सोने का थाल अर्शों से लाए, उसमें मेरा दिल जमजम के पानी से धोया, उसमें हिकमत, सआदत, बरकत, सारी खैरें भर दी, दिल वापस अपनी जगह पे रख दिया। फिर मेरे पास एक सफेद रंग का जानवर लाया जो बुराक की शक्ल में था, और मैं उस पे सवार हो गया, और उससे सवार हो के मैं मक्का से बैतुल मक़दस फलस्तीन कहीं चला गया। ये एक सफर है रूहानियत का। जिस रूहानियत के सफर को आप वाक़या शबे मेराज कहते हैं, ये सारा का सारा सफर तो गैब की बातें देता है, गैब की सादतें खोलता है, ये सारा सफर। और फिर वहीं सारे अंबिया जमा थे, और नमाज का वक्त आया तो फरमाया कौन नमाज पढ़ाएगा, सबकी नजरें और आपको आगे किया गया, तो आपने सारे अंबिया की जमात कराई, इसलिए क़यामत तक आपको इमामुल अंबिया का लक़ब मिला, इमामुल का लक़ब मिला। इस मेराज में, इस रजब में, रजब तो रूहानियत की चाबी है, इसमें ताकतें हैं, और रजब में हैरत अंगेज कुव्वतें हैं। और फिर आप सिदरतुल मुंतहा और कहां कहां अल्लाह का दीदार और जन्नत की सैर और दोज़ख के हालात आपको आंखों से दिखाए गए। ये इस बात की तस्दीक है, ये इस बात की तस्दीक है कि सारी रूहानियत यकीन की दुनिया से चलेगी। हाँ, बस यकीन की दुनिया से चलेगी। किसी ने कानों में अच्छी बात डाल दी तो कहा सुभान अल्लाह, मेरा दुनिया में मेरे मुर्शिद से बढ़ के कोई कायनात में दुनिया में फर्द ही नहीं है। किसी ने कानों में सुनी सुनाई बात या मनफी बात डाल दी तो कहा तौबा तौबा। नहीं, रूहानियत का सफर यकीन की परों के साथ और यकीन की राहों के साथ और यकीन की ताकत के साथ चलेगा। रूहानियत का सफर
यकीन के साथ चलेगा। इस रूहानियत के सफर का यकीन कैसे बढ़े, यकीन कैसे बढ़े और यकीन की ताकत कैसे बढ़ती चली जाए, इसको सोचें। आज मैं कुछ राज बताऊंगा आपको, राज बताऊंगा। मैंने पिछले दफा एक तावीज का तस्करा किया था, मेरी 2 जुमेरातों की गैर हाजिरी रही। मैंने एक तावीज दिया था, औताद, अल्लाह के नेक बंदे औलिया सालेहीन का तावीज है। एक तावीज दिया था, उसकी पूरी तरकीब दी थी। उस तावीज का छपा हुआ कागज हमारे ये नेट पे डाला है, पूछें, नेट पे डाल दिया, इधर भी तकसीम कर दिया और मस्तूरात में भी तकसीम किया। आपके पास ये कागज होगा, ठीक। ये तावीज 11 हाजतें, 11 मुरादें, 11 बरकतें, 11 रहमतें, 11 राहतें, 11 अताएं और 11 हैरत अंगीज इंकशाफात इस तावीज के अंदर कोई कायनात है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा खुद साख्ता नहीं है, ये मैंने नहीं घड़ा। ये पहले ज़हन नशीन रखें, ये मैंने नहीं घड़ा, ये सदियों से चला आ रहा, सदियों से चला। और आज मैं आपको एक वजीफा देता हूं जो औताद का वजीफा है। कुरान की कौन सी आयत? वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, वल जिबाला औतादा। कुरान में इन हस्तियों का तस्कर है। ये अल्लाह के निजाम की मेखें हैं, कायनात में अल्लाह गाड़ देता है। मैं आज आपको रूहानी दुनिया की कुछ बातें अर्ज करता हूं और एक चीज मैं आपको देता हूं, पहले गौर से सुन। जितने भी रिजालुल गैब हैं, ऐसे रिजालुल गैब जो अल्लाह के वली हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, कलंदर हैं, नकीब हैं, नजीब हैं, अबरार हैं और बहुत ज्यादा औताद हैं। औताद का एक वजीफा देता हूं जिस वजीफे की वजह से अल्लाह ने कायनात में उनके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां लगाई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जिम्मेदारियां क्या हैं, गौर से सुनिएगा। और इसी की निस्बत हमारी रजब में है और इसी की निस्बत शबे मेराज के साथ है। शबे मेराज के साथ, शबे मेराज में 2 नफिल पढ़ के ना, हाजत के 2 नफिल पढ़ के, हाजत के, गौर से सुनिएगा। 2 नफिल पढ़ के, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर से पहले 2 नफिल हाजत के पढ़ के, हाजत के पढ़ के, सलाम फेर के ना, अवल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के, फिर इस वजीफे को विजदान से पढ़ें। विजदान किसे कहते हैं? न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा या करू रहें। विजदान कहते हैं कि मुल्क, माल, बीवी, बच्चे, जज्बे, चाहते, कैफियतें सब भूल जाएं, गुम कर गुमान, सारे गुमान गुम, सारी सोचें गुम, सारी चाहतें गुम, सारे जज्बे गुम, गुम कर गुमा, सारे गुमान गुम हो जाएं। यकरू, बस एक हस्ती से ताल्लुक हो, वो है अल्लाह। फिर सुन लें, और अपने मैं जितनी भी सोशल मीडिया की हमारी टीम और मैगजीन की टीम है उनसे अर्ज करूंगा, मुझे हर साल औताद के तावीज को शबे बेरात के साथ, शबे मेराज के साथ की तरतीब देंगे जो मैं आज बता रहा हूं। मेरी मैगजीन की टीम भी और मेरी सोशल मीडिया की टीम भी ये तवज्जो से इसको बात को सुन ले, और इसका 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले लोगों को ऐलान हो कि ये रजब का तावीज
جس کو اوتاد نقش اوتاد تعویز کہتے ہیں، رجب کا تعویز، اور رجب میں شب معراج کو اکٹھا کیا ہے میں نے۔ کوئی مجھ سے پوچھے، بہت عمل ہیں اولیاء کے، بہت عمل ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، لیکن مجھے جو عمل ملا ہے، مجھے جو عمل ملا ہے، اور یہ عمل سینہ تو سینہ ملا ہے، مجھے جو عمل ملا ہے وہ میں عمل آج آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ پورے رجب میں ہے، پورے رجب میں۔ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں شب معراج کا کوئی عمل دیں، شب معراج کا، تو میں یہ عمل دے رہا ہوں۔ پھر غور سے سنیں، تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں اور آخری دفعہ۔ 2 نفل حاجت کے، ہماری سوشل میڈیا اور میگزین کی ٹیم میری باتوں کو نوٹ کر رہی ہے، 2 نفل حاجت کے یکسوئی کے ساتھ، مغرب سے فجر سے پہلے تک، مغرب سے فجر سے پہلے تک پڑھ کے سلام کے بعد اول آخر درود پاک 3 بار، اور پھر ایک وظیفہ پڑھنا ہے وجدان کے ساتھ، اور اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مرادیں، اور یہ 2 نفل حاجت کے ہدیہ دینا ہے ان 4 اوتاد کو۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، لازم ان 4 اوتاد کو ہدیہ کرنا ہے، جن کا تعویذات پہ نقش پہ لکھا ہوا ہے، الہی بحرمت عبد الجلیل، الہی بحرمت عبد الکریم، الہی بحرمت عبد الرشید، الہی بحرمت عبد الرحیم۔ یہ 4 اوتاد ہیں، ان کو یہ 2 نفل ہدیہ کریں۔ ہدیہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہستیاں آپ کے لیے دعاؤں میں لگیں گی، آپ اللہ سے وجدان کے ساتھ ایک وظیفہ پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ انہی اوتاد کا وظیفہ ہے۔ اور میرا گمان ہے، بھول نہیں تو میں یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، چھپایا نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس دن پچھلے دفعہ میں نے ایک بندے کو دعائیں دی تھیں، یہ مجھے اس نے یاد کروایا، یہ رجب کے مہینے میں یہ چیز ہے، میں کو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو لاکھوں کا فائدہ کر دیا، لاکھوں کا۔ یہی میں اپنی میگزین اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہتا ہوں، مجھے اس طرح یاد دہانی کرا دیا کرے۔ چوتھی دفعہ پھر سن لے، 2 نفل حاجت، اس کا ثواب ان 4 اوتاد کی روحوں کو ہدیہ کرے، ٹھیک؟ اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، یہ وظیفہ اوتاد کا وظیفہ ہے، اور اوتاد اس وظیفے کو روزانہ لاکھوں پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو اسباب بنایا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں، ایک پانی پہ معمور فرشتہ ہے، تو اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنا نظام بنایا ہے۔ یہ فرشتہ ہواؤں پہ معمور ہے، یہ فرشتہ بارشیں برساتا ہے، یہ فرشتہ ریبائل، یہ دلوں میں ٹھنڈک راحت پہنچاتا ہے۔ کیا میرا رب ان کا محتاج ہے؟ پھر یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، ہماری ٹیم اس پورے نفل اور پوری ترکیب کو جو میں نفل دے رہا ہوں، اس کو پوسٹ بنائے گی، مجھے دکھائے گی۔ یہ کام لکھتے جائیں، میں لکھا ہوا اچانک دیکھوں گا اپنی ٹیم سے۔ پھر یہ وظیفہ بیٹھ کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف، میں بہت بار بار سمجھا کے یہ نفل عرض کر رہا ہوں، بیٹھ کے پہلے سن لیں، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، اللہ لا الہ هو اللہ الذی لا الہ هو، اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہادی ایک حق، انت الہادی ہوں لیس الہادی الا،
अल्लाह के दो नाम हैं, एक हादी और एक हक। ये फिर विजदान से पढ़ें, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। ये विजदान से पढ़ें, बहुत विजदान से पढ़ें, डूब के पढ़ें। तस्बीह ले लें या ना लें, पर दिल सारा का सारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, जितना हो रो रो के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, साइल बन के पढ़ें, मंगता बन के पढ़ें। ये जब वजीफा करेंगे, वो नेक अरवाह जितने भी हैं और वो औताद, ये वजीफा उन्हीं का है, ये वजीफा उन्हीं का है, उनको राहत मिलेगी। और इस वजीफे में सारी तौहीद 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 है, इस वजीफे में सारी ताकत है। अब वजीफे पे गौर कीजिएगा। अंतल हादी अंतल हक, मौला तू ही मुझे खैर की राहें दिखाने वाला है, तू ही मुझे अंधेरे से निकालने वाला है। कर्ज का अंधेरा, मर्ज का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, फक्र का अंधेरा, बीमारियों का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबतें परेशानियां सब अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अंतल हादी अंतल हक, और तुझसे बड़ा कायनात में हक कोई नहीं है। लैसल हादी इल्ला हु, तेरे अलावा कायनात में कोई राह नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बड़ा ताकतवर वजीफा है, बहुत ताकतवर वजीफा है। मेरे साथ पढ़ें जज्बों की कैफियतों के साथ, मेरे साथ पढ़ें वलवलों के साथ, मेरे साथ पढ़ें दिल के दिहान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अंदर के गुमान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अब सच्ची जुबान के साथ, मेरे पास साथ पढ़ें पूरे जोश के साथ, मेरे साथ पढ़ें पूरे जलाल के साथ, मेरे साथ पढ़ें बावाज़ बुलंद। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक अंतल हादी अंतल हक अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, लैसल हादी इल्ला हु, लैसल हादी इल्ला हु, लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक फूट उठती हैं और दिल की तारों से अल्लाह का नाम ऐसे विजदान के साथ अब कैफियत बदल जाती है, पल में बदल जाती है। ये वो ताकतवर वजीफा है। मौला तू मुझे अंधेरे से निकालेगा, कर्ज अंधेरा, मर्ज अंधेरा, कुफ्र अंधेरा, गुमराही अंधेरा, गुनाह अंधेरा, खता अंधेरा, इल्लत अंधेरा, किल्लत अंधेरा, जिल्लत अंधेरा, मेरी नाकामियां, मेरे रास्ते बंद, मेरी गलियां बंद, बेऔलादी, परेशानी, मेरी झोलियां नहीं भरी, मुझे सच्चा साथी चाहिए, मेरी बेटियों का बख्त चाहिए, मेरे बेटों का नसीब चाहिए, मुकद्दर चाहिए। अगर नहीं मिला, ये अंधेरा है, ऐ मेरा अल्लाह तू हादी है, अंधेरों से तू निकालेगा, और तू हक है, हक है, हक है। हमारे बड़ों की किताबों में एक बात लिखी है, मेरे बड़ों ने जो अपनी डायरियां लिखी हैं, 40 से ज्यादा, बहुत ज्यादा हैं। किसी ने मेरे बड़ों से पूछा आपकी आल क्या है? कहा हम आले हक हैं। तो पूछा क्यों? कहा हमारे मूरे से आला जो थे, बड़े दादा के दादा के दादा के दादा, उनका नाम अब्दुल हक था। आले हक, जैसे आले सऊद कहते हैं, वो तो खैर बड़े हैं। आले हक, अंतल हादी अंतल हक। और फिर नफी कर रहा, लैसल हादी, मौला दुनिया सारी मेरी मदद में आ जाए, अगर तू नहीं चाहेगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लैसल हादी
इल्लल हक, फिर भी तू ही तू है। ये नफिल अगर कोई पढ़ ले और इस वजीफे को विजदान कैफियत, दर्द, गम और पूरे जज्बे के साथ अगर कोई शख्स इसको पढ़े और अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी उलझने, अपनी हाजात, अपनी बलियात, अपने तूफान अल्लाह के सामने रख दे, मेरा मौला मैं तेरे सामने बैठा हूं, और सच पूछे ये चारों तरफ दुर्वेश आके बैठ जाते हैं, मैंने आंखों से देखा। चारों तरफ ये दुर्वेश आके बैठ जाते हैं, चारों तरफ आके बैठ जाते हैं और अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा एक कमजोर आदमी, तेरा एक कमजोर बंदा, तेरी कमजोर मर्द औरत कोई भी अल्लाह ये मांग रहा है तो इसकी जरूरतें पूरी कर दे, इसकी चाहतें पूरी कर दे, इसके दर्द, इसके गम, इसकी बेऔलादी, इसकी जिंदगी की परेशानी, इसकी नाकामी, इसके हालात की सख्ती, अल्लाह तो करम कर दे, अल्लाह तो करम कर दे। सच पूछें तो करम कर दे। हाँ इस साथ आके बैठ जाते हैं। क्या बताऊं आपको, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अनदेखी होती हैं, बात वही एतबार और यकीन की है। बाज़ औक़ात मैं घर जाता हूं तो मेरी बेगम पूछती, आज मज़ामीन नहीं खुल रहे थे, बाद में खुले। मैंने कहा हजरत बाद में तशरीफ लाए थे, साथ आके बैठ गए थे। कौन कहेगा? तो बज़ाहिर तो दुकानदारी है। अब पता नहीं, मैं भी अपने ईमानदार होने का दावा तो नहीं कर सकता। मौत से पहले मैं 1 नंबर हूं या 2 नंबर हूं। मौत से पहले तारिक ईमानदार है या दुकानदार है, मैं तो दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी मेरी ईमानदारी या दुकानदारी को। अल्लाह करे मैं ईमानदार शुमार हो जाऊं। आमीन तो कह दे इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वलिया कफा बिल्लाहि नसीरा। एक कागज और था, रजब के महीने में अल्लाह का निजाम कैसा चलता है। मैं आऊं आपको, मैं किताबों के सबूत के साथ कुछ तहरीरें पढ़ के सुनाता हूं। गौर से समझेंगे फिर समझ आएगी, गौर से नहीं समझेंगे समझ नहीं आएगी। हकीमुल उम्मत ने फरमाया औताद 4 होते हैं। किताब का हवाला है शरीयत और तरीकत, सफ़ा नंबर 338, इदारा इस्लामियात अनारकली ने छापी है। औताद 4 होते हैं जो आलम के 4 रुकन होते हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब। औताद 4 होते हैं। और औलिया की 2 किस्में, एक जिनके मुतालिक खिदमत, इरशाद, हिदायत, इस्लाह कल्ब, तरबियत, तालीम, ये अहले इरशाद कहलाते हैं। ये हजरात अंबिया के हकीकी नायब होते हैं। याद रखिएगा, नबूवत का दरवाजा बंद है, नबी नहीं आएगा, वली आएंगे और क़यामत तक आएंगे। विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद है। वो जिनके मुतालिक खिदमत है, दीनी और दुनियावी बलियात, अपनी हिम्मत बातनी से, अल्लाह के अमर से उन उमूर की दुरुस्तगी करते हैं, वो अहले तकवीन कहलाते हैं। और उर्फ आम में उनको अहले खिदमत कहते हैं। 70 शिफा। और उनमें जो आला और अकवा है वो हाकिम होते हैं और कुतुब तकवीन कहते हैं। कुतुब तकवीन, ये किताब, एक और किताब का हवाला। दुनिया में 4 औताद होते हैं, ये आलम के चारों कोनों में मुतय्यन होते हैं। ये औताद मेखों का काम करते हैं, पहाड़ों की तरह जमीन पर अमन बरकरार रखने का काम करते हैं, रखते हैं।
اور ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ اپنی فتوحات مکی میں فرماتے ہیں میں نے حضرت خضر سے ملاقات کی، امام شافعی کے مقام ولایت کے متعلق پوچھا۔ میں مصر میں امام شافعی کے مزار میں گیا ہوں، قاہرہ میں، پوچھا، فرمایا وہ 4 اوتادوں میں سے ایک اوتاد ہے۔ امام شافعی 4 اوتادوں میں سے ایک اوتاد ہیں۔